तेजस 780 किलोमीटर की रफ्तार से यहां से गुजरे और अब जैगुआर फॉर्मेशन में 5 जैगुआर विमान एरोहर्ट फॉर्मेशन में निकलेंगे, जिन्होंने नाल एयरबेस से, जो कि बीकानेर के निकट है, वहां से उड़ान भरी है। ग्रुप कैप्टन डी कुकरेती इस फॉर्मेशन की कमान संभालेंगे। विंग कमांडर पारिजात सौरभ, विंग कमांडर सिद्धार्थ सिंह, विंग कमांडर और विंग कमांडर एन हुदा अन्य विमानों में। So we have birds in the air and we have our birds in the air, and of course over here all eyes in the air. Following the Jaguar we'll have the Fulcrum. These are 5 MiG-29 upgrade air superiority fighters, and they are flying in a formation, have been recently upgraded and have become extremely potent air-to-air as well as air-to-ground weapon platforms, led by Group Captain Vikas Singh Saini. The other members were Wing Commander Sandeep Banerjee, Wing Commander C. Suresh, Wing Commander Parijat Jha and Squadron Leader Nitin Nagarkoti. दर्शकों में इतना उत्साह है कि वो अपने स्थान पर खड़े होकर इस पूरे दृश्य का आनंद लेना चाहते हैं। पलक झपकने में ही विमान निकल न जाए, इसके लिए उनकी नजर लगातार आकाश की ओर। और अब 3 सुखोई 30 MKI विमान त्रिशूल फॉर्मेशन में उड़ान भरते हुए ग्रुप कैप्टन मनीष चंद के नेतृत्व में हमारे ऊपर से तीनों विमान अलग अलग दिशाओं में विमुख होकर त्रिशूल की रचना करते हुए विंग कमांडर नितिन कुमार वत्स और विंग कमांडर सुमित गर्ग अन्य विमानों में। What heart-stopping moments. And well, if you've been holding your breath so long, please don't let go right now, because coming up is the culmination of the parade. A lone Su-30 MKI will be flying at a speed of 900 kilometers per hour, will split the sky with a vertical Charlie. It is being piloted by Group Captain P. Agnihotri, commanding officer of the number 220 Squadron, with Wing Commander Vipul Mishra. And there it goes. Finally, disappearing into the blue yonder, he signifies the motto of the What an aerobatic maneuver. A high-speed run at a low level and then a vertical climb. Very difficult even for the eye to catch. विमान आकाश में ओझल होते हुए, लेकिन रोमांच उत्साह सभी के मन में है। पृथ्वी से आकाश तक हमारे राष्ट्रीय पर्व के उत्सव की धूम है। गणतंत्र का ये उत्सव रंगों और रोमांच की ऐसी तस्वीर बना देता है कि चाहे वो भारतीय हों या हमारे मेहमान, ये तस्वीरें, ये दृश्य सदा के लिए उनकी खूबसूरत यादों का हिस्सा बन जाते हैं। गौरवशाली देश के इतिहास में एक और महत्वपूर्ण अध्याय दर्ज होता हुआ। So with the fly past literally being the high note that concludes the parade at Rajpath, what a display it's been here today. Visual delight, spirit-lifting patriotic flavor, and of course a poignant gentle reminder of sacrifice and valor, leaving us with feelings of pride, gratitude and confidence. Our Republic Day parade. Ladies and gentlemen, in a short while, the President's bodyguard will arrive in front. A spectacular display this morning here on Rajpath of India in all its glory, echoing prosperity, hope, resolve, dedication, our defense preparedness, and India's strides in going from strength to strength. Our youth power, our cultural diversity, and the intrinsic beauty of our wonderful motherland. कर्मठ भारत, कुशल भारत, सक्षम भारत, विजयी भारत, उन्नत भारत, शाश्वत भारत, भारत को बनाएंगे सोने की चिड़िया था नहीं, सोने की चिड़िया है भारत, दुनिया को बताएंगे। Rajpath,
The Avenue of Kings today, witness to a feast of color, country and creativity. And this is the arrival of the President's bodyguard. Transition from the winter of subdued achievement to a new spring. A day when we can make ourselves a role model for Celebrations here at Rajpath now drawing to a close. The President's bodyguard returning to escort President Pranab Mukherjee and His Highness the Crown Prince of Abu Dhabi, Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, back to Rashtrapati Bhavan. The President's bodyguard has been sighted and they are trotting impressively up to the saluting dais with their pennants fluttering in the morning breeze, the glint of the lance of the drawn sword, the white breeches and Napoleon boots and spurs, the white gloves, the white scimitar, the gold aigulets, gold girdle, dark bay, all horses looking truly majestic and absolutely impressive. He'll soon get into position. The Commandant President's bodyguard will shortly give the word of command for the national salute. All ladies and gentlemen are requested to rise for the national anthem in India. All those in uniform are requested to salute. तिरंगा आसमान की ऊंचाइयों को छूने जा रहा है। वो देखिए, The national anthem तीन रंग के गुब्बारे bringing to a आसमान से close बातें करने जा this रहे हैं। beautiful ये तीन रंग function. हमारे सपने हैं, हजारों हजार सुंदर सपने जो एक एक करके साकार होते The President and Chief Guest will now leave. In the words of His Highness the Crown Prince of Abu Dhabi, and I quote, "We take great pride in sharing such an important occasion. May India continue to develop and prosper, and may its people keep on the path of success. Blessings from His Highness for the Indian Republic." The pale blue of the sky dotted with hundreds of balloons, and here we see the departure of the chief guest of the President of India and of course Prime Minister Narendra Modi. And as the sky gets dotted with these hundreds of balloons, and as the shades of freedom take wings and carry with them the aspirations of over 1.2 billion Indians across the length and breadth of our beautiful and diverse country, we all come together to salute this nation we call our motherland. Bidding farewell to the dignitaries and also to the crowd. राष्ट्रीय पर्व वो अवसर होता है जब राष्ट्र निर्माण के हर संकल्प को दोहराया जाए, जन जन के मन से उठती लहरों को राष्ट्र कल्याण की भागीरथी से जोड़ा जाए। आज सभी के मन से उठती यही भावना है कि हमारे देश के गौरव में हर पल वृद्धि हो। गणतंत्र दिवस का भव्य समारोह जिसमें देश की शक्ति और संस्कृति के सुंदर दर्शन हुए। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त ने कहा है, संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है उसका कि जो ऋषिभूमि है वो कौन, भारतवर्ष है। माननीय राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और आज के समारोह के मुख्य अतिथि अबू धाबी के युवराज प्रस्थान कर रहे हैं
राजपथ से when India became a child of its own destiny. जिस देश को गांधी परिवार राजपथ के ये शानदार दृश्य बहुत विशेष हैं। सबके मन में राष्ट्र गौरव की भावना है, जोश है और भारत की शक्ति से संतोष है। रोमांच, रंगों, अनुशासन, उत्साह और कर्तव्य की उत्कृष्ट भावनाओं को दर्शाती शानदार गणतंत्र दिवस परेड का भव्य समापन। अलग अलग रंगों से सजा हमारा गणतंत्र अब हम सब की उम्मीदों का इंद्रधनुष बन चुका है। गणतंत्र दिवस की एक बार फिर हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद। भारत जिसके वैज्ञानिकों ने संगीत आसमान को मुट्ठी में बांध रखा हो, जहाँ के किसानों के खेतों में अब खुशियां लहराती हो, जहाँ टीम इंडिया एकजुट हो चुकी है, प्रैक्टिस हो चुकी है, विकास की चरम दिशा में। 68वें गणतंत्र दिवस समारोह अभी समाप्त हुआ है और एक शानदार झांकी देखने को मिली। हमें रंग अलग अलग देखने को मिले। हम पिछले 3 घंटे से यहाँ पर बैठे हुए हैं और चर्चा कर रहे हैं कि क्या आज खास होने जा रहा है और हमें पता चल गया कि आज क्या खास हुआ है गणतंत्र दिवस समारोह में। हमारे साथ लगातार बने हुए हैं कमर आगा जी, सिक्योरिटी एक्सपर्ट, जेके त्रिपाठी, फॉर्मर डिप्लोमेट, अनिल आनंद, सीनियर जर्नलिस्ट। सबसे पहले जेके त्रिपाठी जी, आपके लिए सबसे अच्छा, बेहद प्राइड वाला मोमेंट इस बार के गणतंत्र दिवस का क्या रहा? देखिए, एक तो तेजस का प्रदर्शन, दूसरी चीज़ रही स्कूलों का, बच्चों के स्कूलों का उन्होंने जिस तरह से फुली कोरियोग्राफ को किया, वो बहुत अच्छा लगा कि हमारे बच्चों में भी, स्कूली बच्चों में भी इस तरह की भावना है कि वो एकदम परफेक्ट नहीं तो नियर परफेक्ट परफॉर्मेंस कर सके। वो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी इस बार के परेड में लगी। खबर जी, मुझको सबसे अच्छा जो लगा, देखिए 2 चीज़ थी, एक तरफ तो शक्ति प्रदर्शन था और दूसरी तरफ कल्चर का। तो शक्ति प्रदर्शन में अगर आप और तीसरी तरफ ये कि हमारा इंडिजिनस डेवलपमेंट जो डिफेंस सेक्टर में, 3 चीज़ों पर बहुत जोर था। तो उसके अंदर जो मार्चेस थी अलग अलग बटालियंस की, अलग अलग रेजिमेंट्स की, बहुत अच्छी थी। फिर दिल्ली पुलिस का मार्च भी बहुत अच्छा था, मुझको बहुत अच्छा लगा देखने में। और स्टेट की झांकियाँ, अलग अलग कुछ झांकियाँ बहुत ही अच्छी थी, जिसमें क्लासिकल डांसेस, पुराने फोक डांसेस जो सदियों से चले आ रहे हैं उनको दिखाया गया पहली दफ़ा। दूसरी चीज़ ये था कि तेजस और दूसरे जो हमने DRDO ने जो वेपन सिस्टम्स डेवलप किए हैं उनका प्रदर्शन, जनता को देखना कि भाई क्या कर रहे हैं, कितना पैसा, उसके ऊपर किस तरीके से भारत अपनी इंडिजिनस डेवलपमेंट को बढ़ा रहा है, वो था। स्कूल के बच्चे तो थे ही अच्छे, हमेशा अच्छे लगते हैं, जोश और उनका वलवला। और जिनका सिलेक्शन हुआ है, जो नहीं आए हैं, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, उनके लिए एक्साइटमेंट वो अलग लेवल पर है। अनिल आनंद जी, ये था कि मैं समझता हूँ कि इसकी एक अच्छी छवि जो अरब देशों में भी देखने को मिलेगी, खासतौर से UAE में भी ये प्रोग्राम इस वक्त लाखों लोग, इंडियन ही नहीं बल्कि दूसरे भी लोग देख रहे होंगे। और फिर यहाँ का ये जो प्रदर्शन हुआ है, सामान्य चीज़ें, तो ये भारत की सॉफ्ट एंड पावरफुल स्टेट दोनों का रिफ्लेक्शन है। अनिल जी, आपका फेवरेट मोमेंट? देखिए, इन टोटलिटी विस्मरणीय है। किसी चीज़ को, एक चीज़ को इंगित कर लेना, लेकिन फिर भी मैं एक कहूँगा जो मैं पिछले कई सालों से देखता आ रहा हूँ। जब मैंने पहली बार रिपब्लिक डे का परेड एज ए स्कूल गोइंग चाइल्ड देखा, और अब मेरे लिए सबसे ज़्यादा प्राउड मोमेंट इस बार भी उसमें इजाफा हुआ है, वो है विमेन पावर का ज़्यादा से ज़्यादा उद्घोष, उसकी मैनिफेस्टेशन हर साल बढ़ती जा रही है। इस बार खासकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के, और जितनी शमूलियत आगे हमने देखा, मुझे याद है हमारे वक्त में जब हमने शुरू किया देखना रिपब्लिक डे, तो ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं की शमूलियत थी कि वो डांसिंग ट्रूप जो आते थे स्टेट्स के, उनमें वो पार्ट होती थी। उसके अलावा उससे ज़्यादा कुछ होता नहीं था। ये एक बहुत ही सुखद एक एक्सपीरियंस है कि हर साल महिलाओं की शमूलियत, पार्टिसिपेशन और उनका वाकई अचीवमेंट्स के बेस पे शमूलियत है वो बढ़ रही है। जी वाकई, और सभी राज्यों की झांकियों में हमने ये साफ तौर पर झलक देखी है।